Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instantly, not using criteria that were scientific. The born out of need to use organism for own use, फूड भोजन के लिए, शेल्टर के लिए एंड कपड़े के लिए. Arastu was the earliest to attempt a more scientific basis of classification. He used simple morphological character to classify plant and tree, shrubs and herbs. He also divided animal into two groups, those which had red blood cells and those that do not. In lineage time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included the plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotic and prokaryotic, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic green alga or non-photosynthetic fungi organism. Classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom classification used for a long time were found inadequate. Besides gross morphology, a need was also felt, including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. Classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time. Though plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, the understanding of what group organism we include under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood different by different scientists over the time. R.H. Whitaker 1969 proposed a five-kingdom classification. The kingdom defined by the Himber name Monera, Protista, Fungi, Plantae, and kingdom Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. Gives a comparative account of different characteristics of the five kingdoms. The three domain system have also been proposed, which divided the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain. There was six kingdom classification. You will learn about this system in detail higher classes. Let us look at the five kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classifications include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm, and the angiosperm. Under Plantae, the character that unified this whole kingdom was the all organisms included the cell wall in their cells. The placed together group, which widely different in other characteristics, it wove together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic and also grouped together unicellular organisms and multicellular ones. Say, for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. The classification does not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plant, though they also show a characteristic difference in their wall composition. The fungi had chitin in their walls, while the green plants had a cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, the fungi were placed in the separate kingdom fungi. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella, earlier placed in the algae within plants and both having cell walls. The Paramecium and Amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom, which lack cell wall, it is put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. These happened because the criteria of classification change. This kind of change will take place in the future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. Over time, an attempt has been made to evaluate classification system which reflect not only the morphological, physiological, and reproductive similarity, but also in phylogenetic is based on evolutionary relationship. In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whitaker system classification. The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as the plant and animal kingdom respectively, will be dealt separately in chapter 3 and chapter 4. पहला किंगडम Monera.
बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये एनसीईआरटी की लाइन हमसे कहती है कि जो भी मोनेरा में आएगा बैक्टीरिया कहलाएगा। अरे ब्लू ग्रीन अलगी कहने लगी, सर हम तो ब्लू ग्रीन अलगी हैं। हमने कहा ब्लू ग्रीन अलगी होंगी तुम अपने घर की, मोनेरा में आई हो तो बैक्टीरिया कहलाओगी। दैट आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया और ऑलमोस्ट एवरीवेयर, 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ द सॉइल। और मुट्ठी भर मिट्टी अगर मैं लूँगा तो उसमें सैकड़ों बैक्टीरिया होते हैं। दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने, रेगिस्तान, सिनो एंड डीप ओशियन, समुद्र की गहराई में। वेर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, वहाँ पर जो दूसरी लाइफ जिंदा नहीं रह सकती वहाँ भी बैक्टीरिया रहते हैं। मैनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म ऑन पैरासाइट, कुछ तो हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और या फिर उसके ऊपर रहते हैं पैरासाइट बनकर। बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप, उनके आकार के साथ साथ उनका नाम भी अलग अलग। अगर उनका नाम अलग अलग तो उनका शेप भी अलग अलग। द स्पेरिकल कोकाही, द रॉड शेप बेसिलाही, द कोमा शेप विब्रियो एंड स्पायरल शेप स्पायरेलम। तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि सिंगल सेलुलर है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन इनका बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जे ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसमें सबसे ज़्यादा है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप, ज़्यादा से ज़्यादा हेटरोट्रॉप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए, अपनी फूड के लिए, अपनी नीड्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर फूड। नंबर फर्स्ट कैटेगरी है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, मतलब ऐसे ही हार्श हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पर नॉर्मल लाइफ नहीं रह सकती, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मार्सी एरिया, दलदली एरिया, मीथेनोजेंस। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्की मतलब पुराने जो बैक्टीरिया होते हैं जो यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इनकी सेल वॉल में डिफरेंस होता है, इसलिए तो इन एक्सट्रीम कंडीशन को झेल पाते हैं। मीथेनोजेंस जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल जुगाली करने वाले एनिमल होते हैं जो चबा चबा कर भोजन खाते हैं, उनकी गट में सच एज काउस एंड बफेलो, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ द एनिमल। जो गोबर में से बदबू आती है वो मीथेन गैस की ही होती है। यू बैक्टीरिया, they are the thousands of different eubacteria और true bacteria. They are characterized by the presence of the rigid cell wall. इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। एंड इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल हैं तो मोटाइल कैसे होता है बेटा? फ्लैजिला की मदद से, या फ्लैजिला। द साइनोबैक्टीरिया ब्लूगिन अलगी हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, क्योंकि क्लोरोफिल ए ग्रीन प्लांट में पाया जाता है ना। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, साइनोबैक्टीरिया सिंगल सेल के होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, ऑन फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल अलगी भी होते हैं। द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाई जेलेटिनियस सीड, दे ऑफ्टन फ्रॉम द वॉल्यूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन स्पेशलाइज सेल कॉल हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट एक मोटी सेल होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं घुस सकती। एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनाबीना। नोस्टॉक एनाबीना ऐसे ब्लूगिन अलगी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। ये सिम्बायोटिक भी और फ्री लिविंग में भी। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो केमिकल की हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. अगला आता है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। और मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। और मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर, सबसे ज़्यादा नेचर में पाए जाने वाले हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया ही होते हैं। द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, इसमें ज़्यादा डिकम्पोजर। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर।
ज़्यादा बैक्टीरियाओं का जुगाड़ ह्यूमन के साथ ज़्यादा होता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क, यानी दूध से दही बनाने के काम जैसे लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, वेरियस बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाने, पेनिसिलियम नोटेटम। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, दाल वाले पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करते हैं? राइजोबियम। रूट्स, लेग्यूम की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सम आर द पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप से कुछ तो डैमेज भी करते हैं, पैथोलॉजी कॉज कर देते हैं, पैथोजेंस कहलाते हैं। ह्यूमन बींग्स क्रॉप फसलों को बर्बाद कर देते हैं। फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, कॉलेरा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के द्वारा, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, टिटेनस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा, साइट्रस कैंकर जेंथोमेना सिट्री बैक्टीरिया के द्वारा, और वेल नोन डिजीज कॉज बाई डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई बाइनरी फिजन, 20 मिनट में बाइनरी फिजन हो जाता है। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, डेट प्रोड्यूस स्पोर बना देते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई द सॉर्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडेप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम द वन बैक्टीरिया टू अनदर। दिस इज द ट्रांसफर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफरेंस की डिस्कवरी 1928 में ग्रिफिथ साहब ने की थी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक एग्जाम्पल है। द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लेके सेल वाल। एक सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में माइकोप्लाज्मा ही है जिसके पास सेल वाल नहीं होती। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक एनिमल एंड प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे माइकोप्लाज्मा होते हैं जो पैथोजन कॉज करते हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स हो। इसमें 2 डायग्राम दिए हुए हैं। ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को इसमें बाइनरी फिजन के द्वारा दिखाया जा रहा है। और नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है ये नोस्टॉक ब्लूगिन एल्गी है। इसके अंदर हेटेरोसिस्ट की सेल दिख रही है। इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम रहता है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इसको ज़रूरत पड़ती है मोलिब्डेनम की। और दूसरे जो इधर सेब दिखाए हैं ये कोकाई गोल गोल है तो कोकाई दिख रहे हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अगर चैन लाइक मैनर में होंगे तो स्टेप्टोकोकस, और ये अंगूर के दाने की तरह गुच्छे में होंगे तो स्टेफाइलोकोकस। ये आपको बैसिलस रोडसेप बैक्टीरिया है। स्पायरल मतलब स्पायरल दिख रहे हैं, विब्रियो मतलब कॉमासेप। यहाँ पर आपका ये मोनेरा समाप्त होता है। अगला किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा।